Good evening to everyone present. This is Megha Patel, team member of Kash Foundation. I heartily welcome you all to the 11th Health webinar of Kash Foundation under Kash Swasthya Manthan. Under its health vertical, Kash Foundation, in association with MUNOWA and Mumbai Karamchari Sangh, organized a free naturopathy medical camp on 16th November 2019. It was supported by Ministry of Ayush, Government of India, and International Naturopathy Organization. Kash Foundation organized the first and second medical webinar on the 21st and 23rd of May respectively on the health precautions to be followed after the lockdown. The speaker for these webinars were Dr. Parag Mehta, Dr. Jitendra Arya, Dr. Sushant, and Dr. Suryan Dhongre. The third medical webinar was conducted on the 5th of June on how to build physical and mental immunity. The speaker for the session was Dr. Renuka Vyas. On the eve of International Day of Yoga, Kash Foundation's Kash Swasthya Manthan and Kevalya Dhama Mumbai organized a 3-day medical webinar series on 19th, 20th and 21st of June 2020. The speaker for the fourth medical webinar was Dr. Jawahar Mehta, who also spoke on yoga, psychology, and psychiatry on 19th June. Sri Raviji Dikshit was a speaker for the fifth health event on 20th June. He gave a speech on yoga and lifestyle. On 21st June, Dr. Apurva Shenoy spoke on yoga and diet as a speaker for the sixth webinar. On 9th of July, we conducted 7th medical webinar in which Dr. Jyoti Kumbhar was the speaker who spoke on role of naturopathy and yoga on women's health. On 10th of July. We had our 8th medical webinar in which Dr. Roshan Amal from NIN was a speaker who spoke on effect of emotion on health. On 26 July, we had our 9th medical webinar for which Narsima Kamath was a speaker and spoke on the amazing healing powers of the nature. On our 10th medical webinar was in breastfeeding. Our speaker for the day was Kritika Tiwari, a consulting pediatrician at Matushri Gumati Hospital. Now, I once again welcome you all to the 11th Health webinar of Kash Foundation under Kash Swasthya Manthan. Starting from 7th September to 11th September, we'll have a 5-day series with prominent health practitioners. Dr. Kamath, Dr. Suryaban Dongre will be gracing our event with his presence on 7th and 8th September. Then we'll have Dr. Kamath on 9th and 10th September, and to conclude the series, we'll have Dr. Renuka Vyas, consultant and iridologist. Now, I would request our founder trustee, Dr. Afkaz Jadhav, to give us introduction about Kash Foundation. Thank you, Megha. Thank you very much. We welcome you all on behalf of Kash Foundation for this 11th Health Series. As you must have understood that we've been organizing the Health Series with pertinent topics which in fact concerns us, topic which we need to know about, and topic which will definitely allow us to grow. As once Herbert Spencer had said rightly, the preservation of health is a duty. Few seem conscious that there is such a thing as physical morality. Kash Foundation is a trust which was formed in October 2019, and it works on 4 verticals: education, environment, health, and heritage. We have been working on some of the aspects quite extensively, where we believe in our motto that there is a lot the society has given to us, and it is time for us to return back to the society. Looking at this uncertain scenario, health seems to be a primary concern of or primary indicator for us. And that's the reason why we thought we would engage in this 5-day series from 11th to 15th as such. I once again welcome you all. I'm sure you'll have fruitful time in this 5-day health series as such. We know very well health is not valued till sickness comes. And we are trying to work on the aspects where we minimize the sickness in the form of psychology, the sickness in the form of health, the sickness in the form of our relationships around as well. Today, Dr. Dongre is going to address on the topic food poisoning in India, and he'll have in 2 sessions, today and tomorrow. So I welcome Dr. Dongre also on behalf of Kash Foundation. Once again, आप सबका स्वागत है.
और ये 5 दिन मुझे लगता है आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में सादर होंगे और आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। धन्यवाद। ओवर टू यू मेघा। Thank you, sir. Now I invite Renuka Vyas, the Joint Director of Kash Swasthya Manthan, to give introduction about Kash Swasthya Manthan. थैंक यू मेघा। मैं आप सबका काश स्वास्थ्य मंथन में स्वागत करती हूँ। Kash Swasthya Manthan is a very promising name under the banner of Kash Foundation. It's a set to make a mark in the field of healthcare. Kash Swasthya Manthan's aim is to reach out to the masses of all sections of societies and to make people aware that one can live without medicine by simple way of following the nature. People are unaware of the exact benefits of alternative medicine and therapies, which, if followed with proper guidance and knowledge, can lead to a major savings in their medical expenses. Apart from keeping medically fit, Kash Swasthya Manthan's main aim is to make complete awareness to the society in this field through renowned experts and accomplish the vision of Kash Swasthya Manthan for a healthy and disease-free society. Thanks to all of you for joining us. Over to you, Megha. Thank you, ma'am. Now I invite our moderator for the day, Alpa Mehta, a team member of Kash Foundation. From last 21 years, she has been practicing naturopathy. Alpa Mehta is a nutritionist, dietitian, iridologist, and Sujok therapist. Ma'am, over to you. Thank you, Megha, for the lovely introduction. Now I would like to invite our today's speaker, Dr. Suryabhan Dongre. He is the head of Department Ayurveda Mahavidyalaya at Sion. He has done graduate and postgraduate in forensic medicine and toxicology from Government Ayurveda College, Nagpur. He has done LLB, LLM, ND from Mumbai University. Dr. Suryabhana Dongre have received Samaj Bhushan Pushkar, Maharashtra Deep Pushkar, and Rashtriya Ekatmata Fellowship. He has been the best doctor for the dedication in medical service and has 21 years of teaching experience and 25 years in the medical service. He is also the chairman of Anti-Ragging Committee and NSS Program Officer. Today he will be speaking on food poisoning in India on the 11th webinar of Kash Foundation. Sir, the floor is yours. The lecture will be for the 45 minutes and the question answers will take for the 15 minutes. Sir, unmute yourself. काश फाउंडेशन की तरफ से अभी दूसरी बार मैं ये लेक्चर सीरीज में यहाँ पे उपस्थित हो रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने एक डिटॉक्सिफिकेशन पे 21 जून को ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ और अभी दूसरा जो है मैं अभी फूड पॉइजनिंग इसके ऊपर आज कुछ बातें जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। तो काश फाउंडेशन ने ये एक अच्छा उपक्रम यहाँ पे शुरू किया है कि जो हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस लोगों के पूरे इंडिया में कैसा फैलना चाहिए, कैसा वहाँ पे अवेयरनेस जाना चाहिए, तो इसके वास्ते ये वेबिनार यहाँ पे रखा है।
मैं सभी यहाँ पे जो आए उनको सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। सबको प्यार भरा मेरे तरफ से नमस्कार। और अभी जो है हम फूड पॉइजनिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में जो फूड पॉइजनिंग किस टाइप से होता है, तो ये टॉपिक है। जो बातें कॉमन बातें हैं वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, और जो कुछ हटके जो बातें जो मालूम नहीं है वो बातें मैं यहाँ पे रखूंगा। तो इस सेशन में पहले ये समझना होगा कि फूड पॉइजनिंग यानी अन्न विषाक्तता, तो फूड और पॉइजनिंग ऐसा जो दो टर्म्स यहाँ पे जो रखी हुई है, तो पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली पॉइजनिंग क्या है, पॉइजन क्या है, कौन से पॉइजन फूड में इंक्लूड होते हैं और पॉइजनिंग होती है। तो सबसे पहले मैं पॉइजन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पॉइजन कौन से है। ये अगर मालूम अगर हुआ तो आप उसके ऊपर यानी उसको अगर ये पॉइजन कौन से है ये अगर सबको समझ में अगर आ गया तो आप जो है उसको टाल सकते हैं और बच सकते हैं, लोगों का जीवन बच सकता है। तो जैसा विष, पॉइजन, टॉक्सिन, ये अगर नाम लेने के बाद में ये एक ऐसा घबराहट निर्माण हो जाती है। कोई भी आदमी अगर किसी को भी सुनाई आया कि पॉइजन हुआ, विष मिलाया, पॉइजन खाया या जहर खाया, ऐसा कोई भी टर्म कहीं से अगर आ जाती है तो मन में एक विषाक्तता निर्माण हो जाती है, मन घबरा जाता है। तो ये क्यों घबरा जाता है कि इसके बारे में क्या पॉइजन का इफेक्ट क्या है, कौन से पॉइजन कैसे कैसे बॉडी में साइड इफेक्ट करते हैं, बॉडी को कैसा उसमें डिसीज निर्माण हो जाते हैं और फेटेलिटी कैसी हो जाती है, ये अगर पॉइजन के बारे में अगर मालूम है तो ही संभव हो जाता है। तो पॉइजन जो है एक ऐसी चीज है कि जो बाहर से खाने के बाद में अंदर बाहर बाहर से जब लेते हैं और अंदर जब जाती है तो एक तो बाहर में भी कुछ पॉइजनिंग होती है या अंदर में भी कुछ पॉइजनिंग होती है। तो उसको बाहर के बाहर जो पॉइजन रहते हैं उसको एक्सोजीनियस बोलते हैं, और अंदर जब जाके जो बोलते हैं उसको एंडोजीनियस बोलते हैं। यानी जो भी पॉइजन, तो इसके कुछ टाइप्स है कि कैसे कैसे पॉइजन ये पूरे ये इंडिया में दिखाई देते हैं। तो इसमें एक इरिटेंट करके पॉइजन्स है, इरिटेंट, बाद में करोजिव पॉइजन्स है, बाद में नर्वस सिस्टम पे काम करने वाले कुछ पॉइजन है, इसके बाद में कार्डियक यानी हृदय जो रहता है, दिल जो रहता है उसमें एक्ट करने वाले कुछ पॉइजन है। कुछ पॉइजन ऐसे है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उन पे काम करने वाले जो रहते हैं, जैसा ब्लड पे डायरेक्ट एक्ट करते हैं। और कोई मेटेलिक पॉइजन रहते हैं, कोई नॉन मेटेलिक पॉइजन होते हैं। मैं उसके बाद में आपको एक एक का एक एग्जांपल बता के फिर आपको बताऊंगा। एक मेटेलिक पॉइजन, नॉन मेटेलिक पॉइजन, ऑर्गेनिक पॉइजन, इनऑर्गेनिक पॉइजन, उसके बाद में एनिमल पॉइजन होते हैं, और हाउस होल्ड पॉइजन भी होते हैं कि जो घर में रखे कुछ रहते हैं कि उसका पॉइजन हो जाता है। तो पहला जो है कि कुछ पॉइजन, इरिटेंट पॉइजन बोले तो ऐसे पॉइजन होते हैं कि जो लेने के बाद में बॉडी में इरिटेशन निर्माण हो जाता है। तो इसमें कुछ प्लांट्स आते हैं कि जो वनस्पतियां है या घर में कुछ सब्जी भाजियां जो अपन यूज में लाते हैं, या कोई प्लांट्स है कि जो अपने कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उसके वजह से
फॉर एग्जाम्पल कि जैसा मशरूम है या कोई फिश वगैरह जो है, कुछ फिश भी पॉइजनस होते हैं। उसके बाद में लिजार्ड्स है, स्पाइडर है। उसके बाद में कुछ रैट का जो पॉइजन होता है, रैट बाइट होने के बाद में, या रैट जो है वो या कॉकरोच वगैरह जो है, तो ये पॉइजन जब बॉडी में जाते हैं तो इरिटेशन निर्माण होता है। इसके बाद में कुछ करोजिव पॉइजन होते हैं। करोजिव पॉइजन अपने संपर्क में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एसिड होते हैं, कुछ अल्कली होती है। तो घर में फिनाइल वगैरह होता है, या कुछ आ, बर्तन घिसने का जो साबुन रहता है उसमें भी अल्कली रहती है। तो एसिड और अल्कली जो है ये करोजिव में आते हैं। ये इसलिए पॉइजन होते हैं कि जो लेने के बाद में बॉडी में दाह निर्माण हो जाता है, दहन होता है, करोजिवनेस बॉडी में आ जाता है, तो इसको ये पॉइजन है। इसके बाद में ये फूड से संबंधित, यानी फूड के कांटेक्ट में जब फूड पकाते हैं या उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं तो कुछ मेटल्स का भी वहाँ पे कांटेक्ट हो जाता है। तो मेटल्स में कुछ मेटालिक पॉइजन है। फॉर एग्जांपल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, उसके बाद में लेड है, आयरन है, आर्सेनिक है। तो इस टाइप के जो पॉइजन है इसको मेटल पॉइजन बोलते हैं। उसके बाद कुछ नॉन मेटालिक पॉइजन है, जैसा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, फास्फोरस। इस टाइप के जो पॉइजन है ये भी इसका अपने मानव मानव जो है इनसे संपर्क आ जाता है, और फूड से भी उसका संपर्क हो जाता है। उसके बाद में कुछ कार्डियक पॉइजन है। फॉर एग्जांपल कार्डियक पॉइजन में कुछ प्लांट्स है। फॉर एग्जांपल टोबैको, ये एक कार्डियक पॉइजन है। उसके बाद एक वृत्तपत्री बोलते हैं, डिजिटलिस, वो एक है। उसके बाद ओलिएंडर करके एक प्लांट है, वो इसमें कार्डियक पॉइजन में आता है। उसके बाद एकोनाइट करके एक है, एकोनाइट, जिसको वत्सनाभ बोलते हैं। वो खाने के बाद उसको मीठा जहर करके बोलते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स है, तो ये कार्डियक में आ जाते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसी बी रहती है, सीड्स रहती है। फॉर एग्जांपल स्टिचनस नक्स ओमिका करके एक सीड है, उसका कुचला बोलते हैं, प्लांट होता है। वो अगर किसी ने खा लिया तो उसका भी पॉइजनिंग हो जाता है। और ये पॉइजन जो है ये नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के इसमें इफेक्ट होता है। तो ये इसको हिंदी में सुषुम्ना प्रभावक पॉइजन करके अपन बोलते हैं। उसके बाद कुछ पॉइजन सेरेब्रल पॉइजन होते हैं। तो सेरेब्रल पॉइजन ये डायरेक्ट ब्रेन पे अटैक करते हैं, डायरेक्ट ब्रेन पे। तो सेरेब्रल में क्या होता है कि कभी कभी जाते हैं और धतूरा जो है, धतूरा मेटल करके नाम है, धतूरा जो आपने देखे होंगे कि जो भगवान जी को, शिव जी को जो चढ़ाया जाता है, तो उसका जो फल है उसमें जो सीड्स रहते हैं वो सीड्स भी पॉइजनस होते हैं। वो अगर बच्चे खा लेते हैं या कुछ मिर्ची का सीड समझ के, अगर, क्योंकि मिर्ची जो है, कैप्सिकम सीड जो है वो सीड्स, और ये धतूरा का जो सीड्स है ये सरीका दिखता है, इसीलिए उसका भी पॉइजनिंग यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो है, ये लेने के बाद में क्या होता है कि डेलिरियंट पॉइजन है ये लेने के बाद में आदमी जो है कुछ बड़बड़ाने लगता है, कुछ ज्यादा बोलने लगता है, वो असंबद्ध बातें करने लगता है, क्योंकि उसमें उस टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं। वो अपन आगे में जो है मैं बताने वाला हूँ, और उसका क्या कैसा इलाज करना, क्या करना, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो एक पॉइजन है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइजन है कि ओपियम है। ये ओपियम भी मेडिसिन में यूज होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो बेबी सिटिंग जो रहती है, तो बेबी सिटिंग में भी ये ओपियम ये बच्चे को सुलाने के लिए दिया जाता है। और अगर उसका या कुछ खाने में डाल देते हैं वो बच्चे
बच्चा जो बिस्किट या कुछ खाना अगर खाते तो उसमें थोड़ा डाल देते तो बच्चा सो जाता है। तो फिर ये भी पॉइजन हो जाता है ज्यादा परसेंटेज में अगर यूज किया तो। ये इसलिए यूज करते हैं कि जो बच्चा जो है रोता है, और बेबी सिटिंग वाले जो भी लेडीज जो है ये उनको तकलीफ हो जाती है उनको संभालने के लिए, वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सोना चाहिए करके ये उसमें यूज करते हैं। और ये ब्रेन के ऊपर सिडेटिव करके ये करता है, काम करता है। तो ये सोमनीफेरस पॉइजन है। और उसके बाद में एक ऐसा पॉइजन है कि भांग करके है, जो त्योहार में, होली के त्योहार में लोग खाते हैं और पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसका भी भांग, चरस, हशीश, गांजा, ये जो उसका टाइप जो होता है, तो ये क्या करते हैं कि कहीं स्वीट वगैरह जो रहता है उसमें डाल के खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चने वगैरह जो रहता है, तो उस जो होली के त्योहार में चना में फ्राई बना के उसमें डाल के खा लेते हैं, तो उससे भी ये डेलिरियंट पॉइजन करके हो जाता है। और एक ऐसा पॉइजन है कि जिसको नारकोटिक्स टाइप बोलेंगे, तो वो एक है अल्कोहल का भी पॉइजन है। अल्कोहल लेने के बाद में आदमी ऐसा मादक अवस्था वहां पे निर्माण हो जाती है, तो इसका भी पॉइजन बॉडी में हो जाता है, यानी अल्कोहल से भी पॉइजन हो जाता है। तो ये एक आपको बताया मैंने कि एक जनरल क्या क्या पॉइजन होते हैं। इसके बाद में ये जो पॉइजन जो है इसकी जो कैटेगरीज है, तो ये एग्जाम्पल के तहत ये जब भी किसी के संपर्क में आ जाते हैं, या कोई मेडिसिन में अगर इसका, क्योंकि ये जब मैंने जो बताया इससे मेडिसिन भी बनती है, और ये मेडिसिन बनने के बाद कोई अगर समझो डॉक्टर है या नेचुरोपैथी तज्ञ है या कोई आयुर्वेद का तज्ञ है, इन मेडिसिन को जब वो यूज करता है सभी मेडिसिन को, और जो पेशेंट को अगर दिए या किसी को अगर दिया जाता है तो उसको पॉइजनिंग होती है। वो फूड में अगर दिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और आदमी मर भी सकता है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन अपने को मालूम होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ऐसी है कि जब भी फूड पॉइजनिंग ये इंडिया में होता है तो मेनली ये दो टाइप से पॉइजनिंग होता है। एक होता है कि नॉन मेटेलिक पॉइजन और दूसरा मेटेलिक होता है। और एक जो है हाँ, एक मेटेलिक नॉन मेटेलिक ये एक टाइप में आएगा, और दूसरा जो है वो आएगा बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। यानी क्या हो गया, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, और जो प्लांट्स वगैरह है, बाकी जो फूड वगैरह है जो लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड बोलो या कोई जो हर दिन अपन सेवन करते हैं, वो फूड जो लेते हैं तो वो एक एक इसमें आता है। और दूसरा जो है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। तो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ये फूड को पॉइजनिंग करता है या हानिकारक कर लेता है। यानी जब भी वो जो खाद्य रहता है, जो फूड रहता है, उसमें बैक्टीरिया निर्माण हो जाते हैं, या फिर कहीं कितना दिन से वो जब अनाज वहां पे एक आधी जगह पड़ा हुआ रहता है और उसको इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी अगर खाए तो उसका भी पॉइजनिंग हो जाता है। तो इसमें एक होता है कि जब क्या है कि जो खाना है ज्यादा पकाए तो भी पॉइजनिंग हो जाता है, कम पकाए तो भी पॉइजनिंग हो जाता है। और इसमें अगर ज्यादा देर तक अगर रखा जाए, अगर समझो कुछ जो फूड जो है उसका कुछ लिमिट रहता है, कि दूध का भी कुछ लिमिट है कि कितना देर तक रखने के बाद में खराब होता है। उसके बाद में फल है, उसका भी कुछ टाइम होता है। और कुछ जो चावल है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, इसका भी कुछ टाइम होता है। तो वो पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में उस
वो रखने के इस पे वो डिपेंड है कि अपन कौन से एटमॉस्फेयर पे, कौन से कौन से जगह पे, कौन से यानी कहाँ पे रख रहे हैं। तो इसके भी वो पॉइजनिंग जो है अपने को मालूम हो जाता है। तो दूसरी बात ऐसा है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया निर्माण होते हैं, कभी कभी वायरस से भी फूड पॉइजनिंग होती है, कभी कभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उससे भी पॉइजनिंग होती है। तो बैक्टीरिया में ये सैल्मोनेला जो है, स्टेफिलोकोकाई वगैरह जो है, न्यूमोकोकाई वगैरह जो है, या क्लॉस्ट्रिडियम वेल्चाई है, तो ऐसे बहुत से बैक्टीरिया वहां पे है, तो इससे पॉइजनिंग अपने को दिखाई देती है। दूसरा जो है कि नॉन बैक्टीरियल में मेटल पॉइजनिंग है। तो मेटल पॉइजनिंग तब होती है कि कोई भी फूड ये किसी मेटल के सानिध्य में जब आता है तो ये पॉइजनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स जो है कॉपर के सानिध्य में जो आता है तभी भी कुछ फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके बाद में एल्यूमिनियम के इसमें जब कोई खाना पकाता है तो भी फूड पॉइजनिंग होती है। लेकिन एक बात है कि एल्यूमिनियम के इसमें अगर खाना पकाए तो एक क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है, एक्यूट नहीं होती है। जैसा कॉपर में अगर कुछ दूध रखे है या कुछ जैसा जो खट्टी चीजें अगर उसमें रखे तो उसका पॉइजनिंग ये जल्दी से जल्दी होता है। या कभी कभी दूध है, दूध में अगर कोई खट्टा चीज अगर मिलाई जाए तो भी पॉइजनिंग वहां पे हो सकती है। तो उसका जो है मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टाइप से ये होती है। ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में कैसा कैसा दिया है वो मैं वो बातें आप यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इसका जरूरत क्या है? तो ये जो पॉइजनिंग है इसका जरूरत इसलिए है कि ये सब मालूम होना जरूरी है, तब ही आप लोगों को बचा सकेंगे। अगर आप अभी ये मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है कि सभी को जो है जिस प्रॉपर तरीके से खाना पकाना चाहिए उस प्रॉपर तरीके से खाना लोग पकाते नहीं है। जल्दी से जल्दी यानी खाना पकाने के लिए जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम देते नहीं, वो जल्दी से जल्दी पकना चाहिए खाना करके वो इसका बर्तन का कुकर वगैरह जो है इसका यूज करते हैं उसका, इसीलिए उसमें पॉइजनिंग ये हो जाती है। अभी एल्यूमिनियम का मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि एल्यूमिनियम का पॉइजनिंग जो है ये ब्रेन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम के इसमें अगर खाना पकाए तो पकाने के बाद में वहाँ का जो मेटल्स है ये खाने के साथ में उसका रिएक्शन होता है, मिक्स होता है, कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद में फिर धीरे 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 वहां पे फ्री रेडिकल्स जो है उसमें मिक्स होते हैं। और वो फ्री रेडिकल्स मिक्स होने के बाद में फिर वहाँ जो है पॉइजनिंग बॉडी में या पूरे जो सिस्टम है उसमें हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम पे गिरता है अगर ये एल्यूमिनियम का ज्यादा दिन तक अपन यूज किए। इसलिए आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के इसमें कोई भी अगर बहुत से मैंने देखा कि जो भी मेडिसिन बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम के बर्तन में बहुत सी कंपनियां भी जो है एल्यूमिनियम के बर्तन में काढ़ा या दवाई बनाते हैं और उसको गर्म करते हैं। तो ओवर हीट अगर करने के बाद में एल्यूमिनियम का उसको रिएक्शन होता है और उसके साथ में फिर धीरे 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 पॉइजनिंग होना चालू हो जाता है। तो ये पॉइजनिंग होने के बाद फिर उसका थोड़ा सा जो है वो अपने ब्रेन में एब्सॉर्ब होता है और लॉस ऑफ मेमोरी ये दिखती है, लॉस ऑफ मेमोरी दिखती है और अल्जाइमर जैसे जो डिसीजेस है वो दिखते हैं। इसीलिए पहले क्या करते थे कि जो जो कैदी है
कैदी लोगों का दिमाग गुलाम रखने के लिए, यानी उनको उनका दिमाग जो है वो शार्प नहीं रहना चाहिए, उनका दिमाग उनकी मेमोरी जो है वो कम होने के लिए होना चाहिए करके उनको ये एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना परोसा जाता था, उनके इसमें बनाया जाता था एल्यूमिनियम के बर्तन में। वैसा दूसरा अगर देखेंगे तो कॉपर का जो बर्तन है, तो कॉपर के बर्तन में भी पॉइजनिंग होती है जो मैंने बताया, लेकिन इसमें कॉपर का कुछ कंपाउंड से, जैसा कॉपर सल्फेट है, तो ये कॉपर सल्फेट भी आदमी को जो है ये एक पॉइजन है। कॉपर सल्फेट भी पॉइजन है और कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं ये इसका एंटीडोट करके भी है। तो कॉपर सल्फेट को कहीं सॉल्यूशन में डालने के बाद उसमें जो मटर वगैरह जो है, ये मटर भिगाते हैं, तो क्या होता है कि जो उसका कलर बदलता है और पॉइजनिंग होती है। और अपने को क्या लगता है कि जो मटर जो बेचते हैं वो मटर यानी फ्रेश ऐसा दिखता है, मगर उसमें क्या होता है, पॉइजन का थर जमा हो जाता है। उसके बाद कुछ फ्रूट का अगर देखेंगे तो फ्रूट में क्या होता है कि कुछ इंजेक्शन जो है, केमिकल्स जो है वो भी दिए जाते हैं। और कुछ मेडिसिन जो है, जैसा पपई है, तो पपई का जो सीड है, ये पपई का सीड काला मीरा समझ के उसमें मिक्स किया जाता है, तो वो भी पॉइजनिंग करता है। उसके बाद में एप्पल वगैरह जो है उनको भी देखेंगे तो वैक्स वगैरह लगाया जाता है उनको। और जो तरबूज वगैरह जो है, तरबूज को भी एरोथ्रोसिन करके टाइप का एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन वहाँ पे दिया जाता है। दूध भी अभी पॉइजन यानी दूध ज्यादा आने के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो ये पूरा इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉइजनिंग दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा बीमारी जो है इसके वजह से फिर एक बीमारी वहाँ होती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगी। उसके बाद में अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो सिस्टम डैमेज होती है। जैसा तीसरी बात जो है कि इसके वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जीआईटी जो बोलते हैं, अन्न व नलिका जो है वो डैमेज होती है, कॉन्स्टिपेशन जैसे बीमारी हो जाती है। तो ये ऐसी होती है। तो ये क्यों कि ये पहले के जो जमाने में कुछ ऐसे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कुछ बताए थे कि जो खाना अभी खा रहे हैं तो उसमें कैसा कैसा खाना खाना चाहिए, उसके नियम भी थे, लेकिन लोग वो नियम फॉलो नहीं करते। तो उन्होंने बताए थे कि अगर समझो कि कोई भी पॉइजन अगर है और वो पॉइजन किसी इसमें दूसरे पदार्थ में अगर मिलाया जाए तो वो क्या होता है, पॉइजन बन जाता है, जिसको गर्विश बोलते हैं। गर्विश और दूषी विष, ये ऐसे एक विष है कि जो दो पदार्थ जो है मिक्स होने के बाद में एक तीसरा जो पदार्थ जो बनेगा वो होगा विष होगा। कभी कभी दो पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो पॉइजन नहीं होते हैं, वो अगर मिलाए जाए तो तीसरा पॉइजन मिल जाता है, उसको बोलते हैं सिनर्जिज्म। जैसा एक एक पॉइजन या एक अगर नॉन पॉइजनस है और एक पॉइजनस अगर मिलाया जाए तो भी पॉइजनस वहां पे पदार्थ बनेगा, और वो जब भी आदमी के खाने में आएगा तब उसकी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसको बोलते हैं इनकॉम्पेटिबल ऑफ फूड, यानी जो दो पदार्थ जो है अलग अलग तरीके से या अलग अलग डायरेक्शन से रूल्स रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं किए तो जो निर्माण होने वाली जो समस्या है वो उसको बोलते हैं विरुद्ध आहार करके, अपना एक टर्मिनोलॉजी विरुद्ध आहार। तो ये विरुद्ध आहार जो है इसके
अलग अलग टाइप है। ये बहुत प्राचीन जमाने में बताया है, और उसका अगर फॉलो किया अगर लोगों ने, तो आज ये जो ह्यूमन बीइंग जो है, आज का जीवन जो है अच्छा हो सकता है। तो मैं थोड़ा आहार के बारे में बताता हूँ, और आहार क्या है, और उसके बाद में उसके कैसा पॉइजनिंग होता है करके जो बताया गया है टेक्स्ट में, वो मैं आपको एक यानी दुर्मिळ है ये, तो ये बताता हूँ। तो पहले आहार के बारे में यह है कि आहार तो एक जीवन है। ये हर एक आदमी को जीने के लिए आवश्यक है। और जैसा भी आदमी आहार लेगा, जैसा कोई सात्विक आहार लेगा, तो उसका जो मन है और शरीर है और आत्मा है, इंद्रिय है, मन, ये सब जो है ये अच्छे रहेंगे। अगर राजसिक आहार और तामसिक आहार अगर लिया, तो फिर वो आदमी जो है उसी टाइप का बनेगा, और वो गलती करते बैठेगा, और उसको अलग अलग बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो आहार जो है ये कम और ज्यादा ये नहीं लेना चाहिए। जो साम्य अवस्था में, जिसको सम्यक आहार बोलते हैं, तो ये साम्य अवस्था में आहार लेना चाहिए, कि ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। जिसको जितना डाइजेशन हो सकता है, जितना भूख लगा, उतना ही उसके हिसाब से उन्होंने ये लेना चाहिए। तो अगर ये आहार जो है, ये आहार का विषाक्तता भारत में इसलिए दिखाई देता है कि यहाँ जो हैंडलिंग है, फूड का हैंडलिंग बड़े गलत तरीके से यहाँ पे होता है। यानी इसका जो स्टोरेज है, ये भी गलत तरीके से होता है। तो जैसा फार्मिंग होती है, ये फार्मिंग जहाँ से ये खाना आता है, खाना आने के बाद में फिर ये जैसा भी घर में आता है, आने के बाद जैसा रखते हैं अपन, तो कोई कोई लोग क्या करते हैं कि ज्यादा दिन तक रखते हैं। तो ज्यादा दिन तक रखने के बाद में फिर उसमें वो सड़ता है, गलता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, तो फिर उसका पॉइजनिंग हो जाता है। उसके बाद में फिर एक है कि इसका जैसा कुछ नॉनवेज जो है, नॉनवेज के पदार्थ जो है वो अगर कुछ लोग कम पकाते हैं और कुछ लोग ज्यादा पकाते हैं, तो अगर कुछ और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत दिन तक रखते हैं। अगर चिकन मटन या कुछ पदार्थ जो है, ये बहुत ज्यादा देर तक उसको अपने फ्रिज में या इसमें जो रखते हैं, तो उससे भी कुछ पॉइजनिंग होती है, और उसको बोलते हैं टोमेन पॉइजनिंग। यानी जो हवा बंद डब्बा जो बोलते हैं, इसमें जो भी पॉइजनिंग होती है उसको टोमेन पॉइजनिंग बोलते हैं। ये भी बहुत खतरनाक होती है। ये प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेटिव लगा के ये रखते हैं, ये भी बहुत खतरनाक होती है। दूसरी एक है कि बोटुलिज्म पॉइजनिंग करके एक इसका एक है कि बोटुलिज्म पॉइजनिंग एक ये है कि क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब फूड में उसका संपर्क हो जाता है, तब ये टॉक्सिसिटी यहाँ पे होती है। दूसरा जो है एक वायरस, कुछ वायरसेस है, ये वायरसेस के वजह से भी पॉइजनिंग हो जाती है। जैसा हिपेटाइटिस ए है, बाद में हिपेटाइटिस ई है, रोटा वायरस है। तो ये वायरस के वजह से भी पॉइजनिंग जो है वो हो जाती है। कुछ वर्म्स है, रिंग वर्म वगैरह जो है, कृमि बोलते हैं। ये कृमि अगर समझो पेट में अगर गए या कुछ उसके संपर्क में अगर आ गए, तो उससे भी पॉइजनिंग ये होती है। तो जैसा आप आहार लेना चाहिए, वैसा अगर नहीं लिए, तो ये साइड इफेक्ट अपने को दिखते हैं। तो पहले अपन देखेंगे कि ये कैसा होता है।
कि जब कोई फंक्शन में या घर में खाना पकाते हैं, लेते हैं, खाते हैं, तो उसके कुछ नियम हो, वो कैसे ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, काल विरुद्ध करके एक होता है कि कैसा कि गरम जैसा धूपकाला है या ठंडकाला है, तो ठंडकाले में कोई पदार्थ जो है रुक्ष और शीत यानी ठंडा पदार्थ जो है, कोल्ड जो है, आइसक्रीम वगैरह जो है, ऐसे अगर लिए तो फिर क्या होता है कि उसको तकलीफ हो जाती है और पॉइजनिंग हो जाती है। तो उसको जो बोलते हैं, वो बोलते हैं उसको काल विरुद्ध बोलते हैं, यानी जो ठंडी में ठंडे पदार्थ लेना, इससे पॉइजनिंग हो जाती है। उसके बाद में दूसरा जो है कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको शास्त्र में जंगल एरिया बोलते हैं, जंगल एरिया, और दूसरा आनूप एरिया। तो जंगल एरिया बोले तो ऐसे कि जैसा वाळवंट होता है, जो रुक्ष प्रदेश होता है, जैसा राजस्थान वगैरह जो है, ऐसे जगह पे अगर किसी ने आहार का अगर सेवन किया तो भी वहां पे पॉइजनिंग हो सकती है। और दूसरा जो है कि जो ठंड पदार्थ जो है, ठंड एरिया जो है जिसमें ठंडी होती है, उसको आनुप देश बोलते हैं। ऐसे देश में जहाँ पे कफ निर्माण हो जाता है, यानी कफ धातु जो रहता है बॉडी में वो बढ़ जाता है, तो उसमें अगर स्निग्ध पदार्थ अगर लिए या द्रव्य पदार्थ अगर लिए तो उसका भी वहां पे बॉडी को हानिकारक हो सकता है, ये भी फूड का पॉइजन हो सकता है। उसके बाद में अगर जो आहार जो है, जो पदार्थ है, जो आहार है, जो फूड है, ये फूड आप जिसको देने वाले हैं, वो फूड जिसकी जैसी डाइजेस्टिव पावर है, समझो किसी का क्या रहता है, तीक्ष्णाग्नि रहता है। आप सब इसके स्टूडेंट्स हो इसलिए मैं बताता हूँ कि कोई कोई लोग क्या करते हैं कि जो फूड है जल्दी से जल्दी उसका डाइजेशन होता है, कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं कि डाइजेशन ये जल्दी नहीं होता है। तो ऐसे वक्त अगर समझो उन्होंने जिसका डाइजेशन पावर अच्छा है उसको कम फूड अगर दे दिया तो भी उसको बोलते हैं अग्नि विरुद्ध हो जाता है। और जिसका अग्नि मृदु है यानी कम है, उसको अगर हेवी अगर आहार अगर दे दिया जाए तो उसको भी ये आहार का विषाक्तता हो जाता है, बॉडी के अंदर में ये पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि अगर घी, ये तो अच्छा है, और बाद में घी और शहद यानी हनी और घी, ये अगर समझो कम ज्यादा मात्रा में अगर लिए तो फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। अगर समझो इक्वल क्वांटिटी में अगर लिए तो उसका फूड पॉइजनिंग होता है। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए, जो भी डॉक्टर्स है उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए, और जो घरगुती जो खाना पकाने वाले जो भी लोग हैं इनको ये अवेयर करना बहुत जरूरी है कि ये अगर सब मात्रा में अगर लिए तो भी पॉइजनिंग हो जाती है, ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में कुछ ये होता है कि साथ में कुछ पदार्थ हो जाते हैं कि कुछ लोगों को जो हीट मैंने जो हॉट पदार्थ होते हैं, गर्म पदार्थ होते हैं, वो गर्म पदार्थ और तीखा खाना खाते हैं, तो कुछ दिन धीरे धीरे खाने के बाद यानी कि कोई मिर्ची खा लेते हैं तो मिर्ची उसको क्या हो जाती है, साथ में हो जाती है। और ऐसे साथ में होने वाले लोगों को अगर आपने दूसरा पदार्थ अगर दे दिया, अगर ठंडा पदार्थ या गोल पदार्थ दे दिया, मधुर अगर दे दिया, तो भी उसमें पॉइजनिंग हो सकती है। उसका जो ये क्या बोलते हैं, हेल्थ ये हो सकता है यानी डैमेज हो सकता है। उसके बाद में कुछ अवस्था होती है कि जो आदमी व्यायाम करता है, जो आदमी श्रम करता है, तो उस आदमी को जिस द्रव्य से वात बढ़ता है,
वात कौन से इसमें बढ़ेगा कि जिसमें रुक्ष गुण है, जैसा इसकी फली आती है, जो राजमा वगैरह जो रहता है, राजमा की फली अगर खाए, या जो मूला जो है, मूला ड्राई वाला जो मूला रहता है वो अगर खाए, या फिर वाल की जो फली जो रहती है वो अगर खाए, तो इसके वजह से क्या होता है कि बॉडी में या बेसन अगर खाए तो इसमें रुक्षता बढ़ जाती है, और इसमें भी पॉइजनिंग हो सकती है। तो इनको ये नहीं देना चाहिए, ये विरुद्ध आहार हो जाता है। इसके बाद में क्रम के विरुद्ध आहार कौन सा है, यानी पॉइजनिंग कैसी हो जाती है। तो अगर आपको भूख नहीं है, और भूख नहीं रहने के बाद में, या फिर कोई लोग क्या करते हैं कि जो सुबह 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 होने के बाद में मल मूत्र की जो क्रिया करना चाहिए, वो क्रिया नहीं होने के बाद भी अगर खाना खा लेता है कोई, तो उससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो वो भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि घी खाने के बाद अगर ठंडा पानी पी लिए, घी खाया और ठंडा पानी पी लिया, तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। उसको बोलते हैं उपचार विरुद्ध बोलते हैं। उसके बाद में फिर पाक विरुद्ध कुछ ये होता है कि अगर कोई ऐसे फल रहते हैं, कुछ ऐसा अन्न रहता है, फॉर एग्जाम्पल जैसा ये चीकू है, चीकू अगर पूरा उसमें पक्व अगर नहीं हुआ, अपक्व अवस्थे में खाए, और समझो आम है, वो आम अगर आप अपक्व अवस्थे में खाते हैं, तो उस अपक्व या कुछ खाना जो पकाते हैं, या कच्चा खाना पकाएंगे, जैसा चावल है कच्चा रख दिए, तो वैसा अगर उसमें अगर खा लिया, तो उसको भी क्या बोलते हैं कि पाक विरुद्ध बोलते हैं, यानी उससे भी पॉइजनिंग हो जाती है। इसीलिए जो पके हुए जो है सम्यक जिसका क्या बोलते हैं कि आम भी जो है पका है या कच्चा है, ये देखना चाहिए, और उस हिसाब से खाना खाना चाहिए। उसके बाद में जो एक संयोग विरुद्ध यानी दो पदार्थ जब एक में के संपर्क में जब आते हैं, तो उसको बोलते हैं संयोग विरुद्ध। फॉर एग्जाम्पल दूध के साथ में जो अम्ल रस रहता है, यानी आम्बट पदार्थ जो है, वो अगर लिए, तो उसमें भी क्या होता है कि पॉइजनिंग होती है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी सब आप देखेंगे तो सभी इसमें फूड पॉइजनिंग में अलग जो कॉमन बातें दिया है, लेकिन ये बातें जो है ये अलग है। ये विरुद्ध आहार, इनकॉम्पेबिलिटी ऑफ फूड जो है, ये कैसी बीमारी निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा आप दही दही के इसमें आप ये उसको गर्म करते हैं, दही को जब गर्म करते हैं, तब उसको भी संस्कार विरुद्ध ये बोलते हैं कि उसको गर्म करने के बाद में वो पॉइजन बनता है, इसलिए दही को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। वैसा दही जो है, इसके साथ में दही रायता जो लोग खाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, फल रहते हैं, या फिर ओनियन वगैरह रहता है, तो ओनियन के साथ में भी ये यानी प्याज के साथ में भी दही नहीं खाना चाहिए। इससे भी बहुत सी बीमारी पैदा हो जाती है, इसमें भी पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक है हृदय विरुद्धता। ये अलग टर्म है कि ये कि अपने को जो पदार्थ अच्छा नहीं लगता, यानी मन को जो नहीं भाता है, वो पदार्थ अगर किसी ने खा लिया, तो उसकी भी यानी उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है, वो भी बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को करेला अच्छा नहीं लगता है, और बार बार कोई उसको करेला खाने के लिए अगर बोलता है, तो उसमें भी उसको वो नहीं लगेगा, तो ये उसको हृदय विरुद्ध बोलते हैं। उसके बाद में संपद विरुद्ध बोले तो, अगर कोई भी जो फूड है, ये समझो आंवला है, या कोई भी अगर समझो पेरू है, या सफरचंद है,
ये पूरा रस युक्त अगर नहीं हुआ, या कोई मेडिसिन है, मूला है, या फिर गाजर है, बीट है, ये पूरा अगर पक्व अगर नहीं हुआ, यानी जिसको रस युक्त अगर नहीं हुआ और आपने खा लिया, तो भी उसको विकृति हो सकती है। इसीलिए कभी भी आपको सिलेक्ट करते वक्त कि कौन सा चीज खाना चाहिए, कौन सा चीज नहीं खाना चाहिए, इसके वक्त आपने ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये पदार्थ जो है, जैसा आंवला है, आंवला जो है पक्व हुआ या नहीं हुआ, हिरडा जो है पक्व हुआ या नहीं हुआ, तो वो खाने के बाद में अगर नहीं, समझो नहीं खाए, तो उसको बोलते हैं संपद विरुद्ध। ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है, संपद विरुद्ध। दूसरा विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध यानी इनकॉम्पेबिलिटी जो है, इसको बोलते हैं कि अगर खाना खाने के वक्त जो भी नियम है, ये नियम के विरोध में अगर आपने कुछ खाना खाए, कैसा कि नियम कैसे है कि बार बार नहीं खाना चाहिए, एक बार खाना खाए और खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, और खाते वक्त शांति से खाना खाना चाहिए, मन जो है शांत होना चाहिए, एकाग्र चित्त से खाना चाहिए, सत्व मन से खाना खाना चाहिए। तो ये अगर आपने अगर ध्यान में रखा, तो आपका जो है पॉइजनिंग नहीं होएगा, नहीं तो आपका अजीर्ण होके, जैसा आपका खाना आप अच्छा भी रहा और इनडाइजेस्टेड हो गया, तो उसको बोलते आम, यानी अर्ध पक्व। अर्ध पक्व बोले तो वो जब बॉडी जब जाता है, तो बॉडी के अंदर में पॉइजन जैसा बर्ताव करता है, और वो पॉइजन जो है उसको बोलते विकृत रस। और वो विकृत रस क्या करता है कि बॉडी के जहां जहां स्पेस होता है, वहां स्पेस में वो जाता है, जैसा हार्ट में जाता है, फिर वहां ज्यादा उसको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, तकलीफ होती है, फिर हार्ट अटैक जैसे ये व्याधि आ जाते हैं। ये इससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, किसी किसी को ब्रेन के डिसीजेस हो जाते हैं, आंखों के डिसीजेस हो जाते हैं, गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है, फिर हाथ पैर में दर्द होता है, सूजन आ जाती है, और जैसा इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो ऐसे डिसीजेज जो है इसके वजह से आपको होता है। तो ये फूड जो है, ये फूड का अवेयरनेस बहुत रखना काफी जरूरी है। ये मॉडर्न डाइजेशन के इसमें आपको जरूरत है। मैं आपको शॉर्ट में इसका मैनेजमेंट बता देता हूँ। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नाउ यू हैव ओनली, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, बिकॉज हमें क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं और हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो आप 2 मिनट में कंक्लूड कर दीजिए, या तो 5 मिनट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। तो मैं आपको मैनेजमेंट एक बता देता हूँ कि जैसा अगर समझो कोई टॉक्सिन के या पॉइजन के या कोई भी पॉइजनिंग अगर हो गई, तो आप ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी पदार्थ शरीर के अंदर में जाता है, उसमें एब्डोमिनल पेन होएगा, नौशिया होएगा, वोमिटिंग होएगा, बर्निंग पेन होएगा, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा, या डायरिया हो जाएगा। ऐसे अगर सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं, तो आप ये दिखने के बाद आपको ये करना चाहिए कि वो उसको कितना देर हुआ है। अगर ज्यादा देर हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट अलग, अगर थोड़ा देर हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है। तो इसके कुछ ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ता है अपने को, कि जो पदार्थ लेने के बाद पॉइजनिंग हो रहा है, तो उसको वोमिटिंग के द्वारा या स्टमक वॉश के द्वारा उसको बाहर निकाला जाए। तो स्टमक वॉश कब फायदा होता है कि जब ये पॉइजन बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होता है, तब उसको रिमूवल कर देते हैं, यानी रिमूवल ऑफ अनएब्सॉर्ब पॉइजन। ये इसका एक है। दूसरा एक ऐसा है कि अगर समझो बाय चांस अगर पॉइजन जाने के बाद अगर वो एब्सॉर्ब हो जाता है, तो एब्सॉर्ब होने के बाद उसको दूसरे जो है, जैसा दूसरी टेक्निक, जैसा एंटीडोट्स जो है, यानी एक आधी पॉइजन लिए तो हर एक पॉइजन का एंटीडोट होता है। अगर समझो कोई किसी ने अगर कॉपर सल्फेट लिया तो उसका एंटीडोट हो जाएगा। अगर किसी ने अगर कई मेटल्स पॉइजन अगर ले लिए तो उसका भी एंटीडोट हो जाएगा। कई आयरन पॉइजनिंग अगर हो गई तो उसका एंटीडोट हो जाएगा।
अगर किसी ने आर्सेनिक ले लिया, लेड पॉइजन अगर ले लिया तो उसका भी अपने को ये हो जाता है। तो इसका एंटीडोट बोले तो ये कौन से केमिकल एंटीडोट है, फिजिकल एंटीडोट है, मैकेनिकल एंटीडोट्स है, हाउस होल्ड एंटीडोट है, यूनिवर्सल एंटीडोट है। अगर कोई एंटीडोट अगर मालूम ही नहीं, अगर पॉइजनिंग अगर हो गई और कोई एंटीडोट मालूम नहीं, तो क्या करने का, आप यूनिवर्सल एंटीडोट का आप यूज कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल एंटीडोट यानी क्या, उसमें टैनिक एसिड रहता है, एक्टिवेटेड चाल्कोर रहता है, और मैक्सल यानी मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये उसमें मिक्स होता है। तो इस ये आप ले सकते हैं, इससे भी आपको फायदा हो सकता है। या फिर मेटल अगर पॉइजनिंग है तो चिलेटिंग एजेंट करके है। तो ये चिलेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट है कि क्या करते हैं कि जो भी मेटल आपके बॉडी में आता है तो ये मेटल को वो नॉन हार्मलेस सब्सटेंस में वो कन्वर्ट करता है, और हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के बाद में वो यूरिन के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं चिलेटिंग एजेंट। तो ये भी होता है, क्योंकि जैसा लेड पॉइजनिंग हो जाती है, कॉपर पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग वगैरह जो है, या आइसक्रीम वगैरह है, या कुछ सब्जी भाजी जो है, इसमें भी आपने को, या फल है, फल में जो कुछ भी कोटिंग वगैरह रहती है इसमें रहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, कि जैसा आपको फीवर आ जाता है तो फीवर का ट्रीटमेंट आपको देना है। उसके बाद में आपको अगर समझो डायरिया है, तो डायरिया में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन के लिए आपको फिर मिनरल्स जो है वो ये बैलेंस करना होता है। इसका एक ट्रीटमेंट आपको देना पड़ता है। और तीसरा जो है मेंटल कंडीशन ध्यान में रखना पड़ता है, कि बॉडी जो लोगों की मेंटल कंडीशन कैसी है उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि कोई लोग जो है, अगर कोई ऐसे पॉइजन है कि जिसमें क्या हो जाता है कि एनिमल पॉइजन है, कि एनिमल पॉइजन में ज़्यादा से ज़्यादा नींद आती है। और जैसे वेजिटेबल जो पॉइजन है, इसमें क्या होता है कि ये डायरिया, डिसेंट्री और वोमिटिंग, नौशिया ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें ये देना चाहिए। तीसरा एक मैं बता देना चाहता हूँ शॉर्ट में, कि जो एसिड और अल्कली पॉइजनिंग जो है, जैसा किसी ने फिनाइल वगैरह पी लिया है, या किसी ने सोडा वगैरह खा लिया है, तो अगर कोई एसिड है तो ध्यान में रखना चाहिए कि उसको वीक अल्कली ये देना चाहिए। और और जो अल्कली जो है, ये अगर किसी ने ले लिया तो उसको वीक एसिड ये देना चाहिए। फॉर एग्जांपल वीक एसिड में जो है टार्टेरिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, जो एसिटिक एसिड है। तो ये आपने देने के बाद में आप उसको उससे दूर रख सकते हैं। उसको उसके जो जितने भी फूड पॉइजनिंग के जो भी है, ये आप उसको दूर कर सकते हैं। इसमें फूड एलर्जी का भी जो है, फूड एलर्जी भी कई फूड अगर मिक्स कर ले तो फूड एलर्जी हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं खाना पड़ता है, उसको टालना पड़ता है। उसके बाद में फिर कुछ अडल्ट्रेशन होता है सब्जी भाजी में, या कुछ पदार्थ में, या मसाला के जो पदार्थ रहते तो उसमें, तो वो भी आपको समझ लेना चाहिए कि कौन से इसमें कौन सा अडल्ट्रेशन रहता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए, ये इतना 1 घंटे में कवर करने वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन जो बात अलग थी, क्योंकि आप नेट पे या बाकी इसमें देखते हैं तो उसके अलग जो बातें जो आपको मालूम नहीं, जो इनकॉम्पेबिलिटी जो है, तो ये बातें मैंने आपको ये शेयर कर दिया। तो मैं पहले सबको ये मेरा जो कुछ भी वेबिनार ये लिया है, तो जिसको यहाँ पे आपको कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हैं। और मुझे ये काश फाउंडेशन जो है इसने यहाँ पे बुलाया और मौका दिया, तो मैं उनका आयोजक का, और ये टेक्निकल टीम है उनका, और जो यहाँ पे डेलीगेट्स है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ। Yes, yes, yes. Thank you, sir, for your wonderful talk on the food poisoning in India. सर, अभी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आपको, जो पार्टिसिपेंट्स ने पूछे हुए आपसे। गौरांगी हाथीवाला जी पूछ रही है कि उड़द एंड कर्ड साथ में ले सकते हैं? देखो, उड़द और कर्ड ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनका जो है
जैसा रस, वीर्य और विपाक, जैसा दूध के साथ में नहीं ले सकते हैं। दूध और वो ले लिए तो क्या हो जाता है कि उसका रस, वीर्य, विपाक अलग अलग है। कर्ड का जो है अम्ल विपाक होता है, और जो उड़द है इसका विपाक जो है ये मधुर होता है। उसके गुण जो है ये अलग है और इसके गुण अलग है, लेकिन लोग लेते हैं, लेकिन नहीं, शास्त्र के हिसाब से उसको अपन टालना चाहिए। ओके सर। ओके सर, महक बजाज जी पूछ रहे हैं कि आपने बोला कि दूध में हम लोग कोई खट्टी चीज नहीं डाल सकते, ठीक है, तो लेकिन हम लोग जब पनीर बनाते हैं तभी हम लोग नींबू के बूंदे ही डालते हैं, तो वो कैसे आप बताएंगे? हाँ, तो कैसा है कि ये पनीर जो बनाते हैं तो इसकी प्रोसेस जो है ये बॉडी यानी पहले हो जाती है। इसको अपन प्रोसेसिंग करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, उसको फिर उसमें पनीर बनाते वक्त खट्टा डालते हैं, बाद में उसको कुछ बांध के रखते हैं या छान लेते हैं। उसका वो प्रोसेसिंग अलग अलग हो जाता है, बराबर है। लेकिन जैसा ये शरीर बॉडी के अंदर में लेते हैं, जैसा दूध है, दूध के इसमें अपन ने नमक अगर ले लिया तो बाहर जो है दूध और नमक अगर मिलाए तो फट जाएगा। और बॉडी के अंदर में अगर आपने लिया तो दूध का फंक्शन क्या है कि दूध हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी एक पदार्थ अगर आप जब लेते हैं तब उसका गुण ज्यादा होता है, पॉइजनिंग नहीं होती है। दूध अगर लेना है तो दूध के साथ में नाश्ता मत ले लो। ये तो लोग क्या करते हैं कि पहले दूध लेते हैं और या फिर कुछ खाते हैं और बाद में दूध लेते हैं, चाय लेते हैं। वो नहीं लेना चाहिए। अगर आपको चाय लेना है तो चाय ले लो, दूध लेना है तो दूध ले लो। बाद में दूध लेने के 2 घंटे बाद या 1 घंटे के बाद जैसा भी वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा तो वैसे उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, मगर आप लेते वक्त तुरंत आपने ये नहीं लेना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। अनिल खेरे जी पूछ रहे हैं कि स्प्राउटेड फूड पॉइजनस होते हैं? ये पॉइजनस नहीं होते हैं। ये क्या है कि अलग अलग जो स्प्राउट्स जो है ये पॉइजनस हो सकते हैं। किसके लिए? कि जो लोगों का अग्नि जो है ये मृदु है, तीक्ष्ण अग्नि नहीं है, यानी जो पचा नहीं सकते, जो जिनका एसिडिटी का जिनको प्रॉब्लम है, उन लोगों को कोई भी डाइट जो है वो यानी उसको पॉइजन हो सकता है। मगर जो हेल्दी जो है, जिसका अग्नि तीक्ष्ण है, यानी समाग्नि है, उसको ये लेने के बाद में उसको अच्छा ही विटामिन जो है, मिनरल्स है, ये मिलेगा और ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मगर लेते वक्त क्या करना कि थोड़ा सा उसको स्टीम करके लिए तो उसका बेनिफिट अच्छा है। ओके ओके सर, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि डेली में हम लोग कौन सी कढ़ाई यूज करें, हाँ, कौन सी तो बेस्ट है? डेली में जो है कढ़ाई जो ये है कि मैंने बताया कि एल्यूमिनियम के इसमें जो लेते हैं, और एल्यूमिनियम का लेने के बाद में जब कुछ दिन के बाद में देखे तो वो कढ़ाई का जो पतरा जो है वो ये हो जाता है, पतला हो जाता है। इसका मतलब जो है वो पतला होने का मतलब वो धीरे 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 आपके बॉडी में वो जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कुकर का यूज करते हैं, बराबर है। कुकर में भी ऐसा होता है कि उसमें बुलेट का जो रहता है वो पाउडर होता है, तो बुलेट का भी पाउडर उसमें आता है, तो वो भी पॉइजन हो जाता है। इसीलिए आपने एक ये आता है हमारा जो मेडिकल में जो मेटल्स रहता है, सर्जिकल मेटल, तो उस सर्जिकल मेटल में अगर आप कुछ लेते हैं या बनाते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। और वो जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तेल है, ऑयल है, ऑयल को आप भजिया और कुछ बनाते हैं, भजिया बनाए, भजिया बनाने के बाद में वो तेल अगर दूसरे दिन अगर आपने देखे तो उसके ऊपर ऐसा हरा हरा आता है, वो पॉइजन है। रीयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा तेल अगर आपने गर्म किया तो वो पॉइजन के इसमें काम काम करता है, पॉइजन होता है ज्यादा ये होने के बाद। तो इसलिए अगर आपने सर्जिकल मेटल में अगर ये किया तो ये जो है आप वो तेल बार बार यूज कर सकते हैं, कोई पॉइजनस उसमें नहीं होता है। और किसी को आयरन का अगर डिफिशियंसी है तो आयरन के कढ़ाई में आप उसको पदार्थ बना सकते हैं। ओके सर। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस में ले रही हूँ। टमाटो और दही साथ में ले सकते हैं? देखो, टोमेटो और दही जो मैंने बोला कि सैलेड जो है
अगर अलग लिए तो क्या होता है कि उसका रस जो है अम्ल हो जाएगा। टोमेटो जो है उसका भी रस अम्ल ही है, तो एक आधी बार ये ले सकते। टोमेटो में आप उसको दही को डाल सकते क्योंकि वो उसका रस एक है, वीर्य एक है, विपाक एक है, यानी रस वीर्य विपाक ये एक रहे तो ले सकते हैं। गुण अगर एक है तो ले सकते हैं, लेकिन रस वीर्य विपाक में अगर कोई रस जय समझा मधुर है और दूसरा समझो कटु है, कटु बोले तो तिखट होता है, ये ध्यान में रखो अपने इसमें साइंटिफिक लैंग्वेज में। अगर ये लिए तो उसमें नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो सेम है, जैसा टोमेटो अगर अलग लिए तो उसका बेनिफिट ज्यादा है, दही अगर अलग ले लिए तो उसका अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि दही ये पेट के लिए अच्छा होता है अगर खुद लिए तो। और सर अभी लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव में जो खाना सब बनाते हैं तो वो अच्छा है, मतलब कितना नुकसान करता है बॉडी में? देखो माइक्रोवेव का ऐसा है कि क्या होता है कि आजकल फूड जो बाहर से आता है, तो बाहर से आने वाला जो फूड ये क्या यानी उतना बराबर नहीं होता है उसका जो यानी जैसा कोई भी बाहर से अगर ला लिए, फॉर एग्जांपल कोई होटल से कोई ला लिए, कुछ बेकरी का प्रोडक्ट ला लिए, तो उसमें क्या होता है कि कुछ तो बाहर का कंटेमिनेशन होता है। और ये जो है आपने अगर इसमें अगर इसमें हीट करने के लिए अगर रख लिया जाए माइक्रोवेव में, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा हो सकता है, उतना बुरा नहीं। यानी नहीं लेने के बजाय यहाँ पे किए तो उसका स्टरलाइजेशन हो सकता है, स्टरलाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो ये अच्छा है। इसका ईस्ट वगैरह जो है ये आप वहाँ पे ये कर सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी तरह से सबको हाँ, इतना दूसरा एक अच्छी तरह मैडम से, यस हनी, हाँ हनी यस का यस, बता देता हूँ, हाँ हनी जी का हनी बता का भी देता हूँ। क्वेश्चन था, हाँ। हाँ, तो हनी का ऐसा है कि लोग क्या करते हैं कि वेट कम करने के लिए हनी गरम करके लेने के लिए बोला है लोगों ने, लेकिन हनी को अगर गरम किए तो वो पॉइजन बनता है। इसीलिए आपने हनी को जो नेचुरल कंडीशन में है वो नेचुरल कंडीशन में ही आपको लेना है, वो आपका बहुत अच्छा है। उससे अगर ओरिजिनल अगर हनी है तो डायबिटीज भी नहीं बढ़ता है, डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं हनी अगर ओरिजिनल हनी है तो। और अगर समझो उसको आपने ये हनी गरम करके अगर लिए तो वो पॉइजन का काम कर सकता है, पॉइजन बन सकता है, इसलिए उसको हीट नहीं दिया जाता। हनी कभी गरम नहीं करते हैं, तो उसको ओके नेचुरल इसमें वो अच्छा काम करता है। ओके ओके सर। सर बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने बहुत लिस्ट भेजी है, हम लोग कोशिश करेंगे उनको सब क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे बाद में। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करी, सो डोंट वरी, हमारे पास बहुत कम टाइम है, वी हैव टू फिनिश इट। सो सर थैंक यू सो मच। अभी मैं कंक्लूडेड रिमार्क आज के सेशन के बारे में दे रही हूँ। सर ने जो बताया कि फूड पॉइजनिंग के बारे में, इंडिया के बारे में जो बताया, मैं शॉर्ट में सिर्फ बता रही हूँ। वो कह रहे कि टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग एलर्जी वी हैव टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, वी हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस, बी अटेंटिव व्हाइल ईटिंग, while eating you must know your limitation, your health, your necessities. Food poisoning happen frequently when different type of food is combined. इसका मतलब ये होगा जब भी दो चीजें कंबाइन किया जाता है जो अपने हेल्थ को सूट नहीं कर रही है, तो वो चीजें को हमें अवॉइड करनी चाहिए। और ये कहाँ कहाँ ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल, अभी हम लोग जो जंक फूड के पास जा रहे हैं, तो वो लाइफस्टाइल में ये चीजें ज्यादा बढ़ रही है, और इतनी बढ़ चुकी है कि वो डेथ भी हो रहा है लोगों का फूड पॉइजनिंग के हिसाब से। और बहुत सारे अल्जाइमर डिजीज, ये सब सारी चीजें भी इसके अंदर, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा तो वो बढ़ती जाती है। तो इसके साथ ही मैं अपना कंक्लूड रिमार्क कंप्लीट कर रही हूँ। और बिफोर वी वाइंडिंग अप, मैं सबको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके अभी भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन होना है, अभी अपने ये 4 दिन बाकी है, तो कल टुमारो टिल 1 o'clock वी आर टेकिंग रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग ग्रुप में किसी को भी जिसके पास भी आपने रजिस्टर किया है, वो उनसे आप बात करके अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने अदर लोगों को बता के रजिस्टर कल टिल टुमारो 1 o'clock यू कैन डू इट।
Okay, so before we winding up, we would like to extend our gratitude towards our today's speaker, Dr. Surya Bhama Dongre. Thank you to all the viewers for participating so actively. Tomorrow, on 8th September, 12th Health Webinar, again, Dr. Surya Bhama Dongre will be joining us and will be talking on pesticides and its effect on human beings, sharp at 5 o'clock. You can visit our website www.castfoundation.org. You can even follow us on Instagram and on Facebook. Myself, Alpa Mehta, team member of Cast Foundation, signing off. Thank you, everyone. Good night. Tomorrow we are meeting